الدنيا والآخرة المدينة ولقال جبرائيل وهم تحت الكساء صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال له من الله وجل قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس هذا البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي عليه السلام يا رسول الله اكفني ما جلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله تعالى. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نبيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل هذه الأرض وفي منشيتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وعفت بهم الملائكة واستغفرت لهم لا يتفرقوا صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي عليه السلام إذا هو الله حسنا وسويتم كذلك شهدنا فازوا وسويتوا رب الكعبة. فقال رسول الله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نبيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي منشيتنا وفيه مأمون إلا فرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي إذا هو الله فقلنا وسويتنا كذلك أشياءنا فازوا وسويتوا في الدنيا والآخرة. اللهم صل على محمد وآل محمد. 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 کل انبیاء کی دفعہ کو حسین کہتے ہیں. کل انبیاء کی دفعہ کو حسین کہتے ہیں. خدا کی خاص ابا کو حسین کہتے ہیں. خدا کی خاص ابا کو حسین کہتے ہیں. یزید نام ہے دنیا کی کل نجاست کا. یزید نام ہے دنیا کی کل نجاست کا. طہارتوں کے خدا کو حسین کہتے ہیں. طہارتوں کے خدا کو حسین کہتے ہیں. اصغر کو پکڑ پاؤں سے جانا نہیں آتا. اصغر کو پکڑ پاؤں سے جانا نہیں آتا. مقتل سے کبھی ہار کے آنا نہیں آتا. مقتل سے کبھی ہار کے آنا نہیں آتا. بچے کی ہنسی کر رہے اس بات کو ثابت اور دشمن کو تیر چلانا نہیں آتا. بیٹا ہے مشکلات کے راستے میں ہار کرے بدنصیب دیکھ کر. بیٹا ہے مشکلات کے راستے میں ہار کرے بدنصیب دیکھ کر. علی کو پکار کر کے مذہب کا قتل بھی کوئی خیبر میں. علی کو پکار کر کے مذہب کا قتل بھی کوئی خیبر میں. پھینکا تھا ذوالفقار کا صدقہ اتار کر. پھینکا تھا ذوالفقار کا صدقہ اتار کر. ہر تیر حملہ تیرا بیکار جائے گا. ہر تیر حملہ تیرا بیکار جائے گا. تجھے ان سے اتنا حسد کیوں ہے؟ تجھے ان سے اتنا حسد کیوں ہے؟ وہ جو نبی کی آنکھوں کا نور ہے. وہ جو علی کے دل کا سکون ہے. ذرا پوچھ اپنے دبیر میں. ذرا دیکھ اپنے خبیر میں. وہ جو مر گیا وہ یزید تھا. وہ جو نہ مر سکا وہ حسین تھا. مقصد سرور کب تھا بانی ورنہ در تک آتا پانی. نو کے سنا پیشہ قطر ہے پیاس اونچی میٹھا پانی. پتھکیا عباس دریا پیاسا جیتا ہارا پانی. چھوڑ محرک کل کی باتیں. چھوڑ محرک کل کی باتیں. آج ہاتھ میں کس کے کلتا پانی. آج بھی کہتا روزہ غازی جس کا ساحل اس کا پانی. سر پہ عزیزی اوچی تلیا کتنی جلدی چھلکا پانی. حاکم شامی تیرا مقدر کیچڑ بدبو گندا پانی. آنے دو اس کو بید کھلے گا. دودھ ہے کتنا کتنا پانی. اللهم صل على محمد وآل محمد.
बगैर हुब्बे अली मुद्दा नहीं मिलता, बगैर हुब्बे अली मुद्दा नहीं मिलता, इबादतों का हरगिज़ सिला नहीं मिलता, इबादतों का हरगिज़ सिला नहीं मिलता। खुदा के बंदो सुनो गौर से, खुदा की कसम, जिसे अली नहीं मिलता उसे खुदा नहीं। फिर बताओ खास मोहसिन इस्लाम के ईमान पे लड़ना छोड़ दो। मोहसिन इस्लाम के ईमान पे लड़ना छोड़ दो, अनगिनत बापों की औलादों अकड़ना छोड़ दो। मोहसिन इस्लाम के ईमान पे लड़ना छोड़ दो, अनगिनत बापों की औलादों अकड़ना छोड़ दो। हजरत इमरान की सीरत है नाते मुस्तफा, है अबू तालिब से नफरत, नात पढ़ना छोड़ दो। एक नया सलवार एक बार से बुलंद नारे वो जिसके दिल में विला का शजर नहीं होता, वो जिसके दिल में विला का शजर नहीं होता, वो अपने बाप का होता है पर नहीं होता। वो जिसके दिल में विला का शजर नहीं होता, वो अपने बाप का होता है पर नहीं होता। अली लहद में मेरे साथ साथ चलते हैं, अली को इल्म है तन्हा सबर नहीं होता, अली को इल्म है तन्हा सबर नहीं होता। अली ने खुद को समेटा है एक नुक्ते में, मगर न तुमसे अली मुख्तसर नहीं होता, मगर न तुमसे अली मुख्तसर नहीं होता। एक नया सलवार नया सलवार
माता जो भी अपने मस्ते काम की मार्फत हो रहा है दुनिया से चला जाए वो जाहिलियत की बात है। जाहिलियत से मुराद होती ये है कि वो यहूदी और नसारा बने। लेकिन क्या कहने हमें इसी कौम में पैदा किया कि जहाँ जाहिलियत का दूर दूर तक के कोई नाम निशान क्यों नहीं? उसकी वजह है अल्लाह ने मरकज़ इस्म तहारत जनाब ज़हरा के नसार और उनके हम सफ़र बस इन दोनों की वजह से आज हम शिया इस ज़मीन पर चैन की सांस ले जो मैंने जनाब ज़हरा ऐसी हस्ती है यानी जिसको भी अगर इनकी मारिफत हासिल हो जाए, जिन लोगों ने भी इनके वास्ते से जो कुछ भी मांगा वो उसका दूर। जैसे आप ले लीजिए और कौन 10 वीडियो की कहानी ये भी जनाब ज़हरा की कहानी है, यानी कभी रद्द नहीं होती। अल्लाह इनको कभी रद्द नहीं करता। तो इनकी क्या बुलंदी होगी। इनके बच्चों को अगर देख लीजिए जो हसनैन है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो है इमाम हम लोग हमेशा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जिक्र ज़्यादा होता है, इमाम हसन अलैहिस्सलाम का थोड़ा कम होता है। लेकिन इमाम हसन अलैहिस्सलाम की ज़ात ऐसी है कि एक शख्स आया, आने के बाद में इमाम हसन अलैहिस्सलाम के दरवाजे पर खूब उल्टी सीधी बातें करने लगे, खूब बुरा भला कहने लगे। कहते कहते वो थक गया और चला गया, किसी ने बहका दिया उसको। एक वक्त ऐसा आया कि वो जो है बिल्कुल गरीब नादान मुफलिस हर जिस दर पे जाता है वहाँ पे धक्के मारते से भगा दिया जाता है। किसी ने कहा उस दर पे जाओ जहाँ से दुनिया बिन मांगे मिलता है। आखिर में पछताता हुआ उसी दरवाजे पे आया जहाँ पे भी खुला खुला है। एक दरवाज़ा खटखट आया, इमाम अलैहिस्सलाम ने पूछा कौन? कहा खुला हुआ। इमाम ने कहा क्यों आया है? कहा मैं मुफलिस हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है और लोगों ने भी मुझे देने से इनकार कर दिया। इमाम ने कष्ट भर कर चाहवाला जितने भी पैसा जो भी था इमाम के पास, इमाम ने कष्ट भरकर पर्दा हटाकर अपना हाथ बढ़ाकर अपना मुंह धोकर उसको बड़ा खुश हुआ के बाद दिया। लेने के बाद पूछता है कि ये तरीका मुझे समझ में नहीं आया कि आपने अपना मुंह छुपाकर पर्दे में और ये मुझे दिया, ऐसा क्यों किया? तो इमाम फरमाते हैं कि तू जो इतना बुरा भला कह के गया था, अगर तेरी निगाह मुझसे मिलती तो तू शर्मिंदा हो जाता। इस दर के यानी इमाम हसन अलैहिस्सलाम की बात कर रहे थे, कितना आला ज़र्फ है। इसके आगे जो है अपने आप को रखे थे, हम कहाँ हैं? तो हमारे अंदर ये चीज़ नहीं है। हम तो चाहते हैं कि किसी तरह से वो हमारे दरवाजे पे आए तो हम बहुत झलक के भगा। इमाम ने बताया है, इमाम ने ये दर्श दिया है कि अगर तुम्हारे दरवाजे पर कोई आए, चाहे कैसा भी हो, दुश्मन हो, लेकिन उसके सवाल को रद्द ना करो। ये तुम्हारी आदत है। एक सलवार भेजे मोहम्मद। इस दर पे ऐसे ऐसे लोग आए हैं कि जिनकी नस्लों में औलादे नहीं। हमेशा वाक़या नस्लों में औलादे नहीं। राही का वाक़या आपके सामने कि राही आया, आने के बाद उसमें पूरा से पूछता है, बड़े जानते हैं बच्चों के लिए, तो कहता है कि या उसका मुझे औलाद चाहिए। क्या औलाद? एक मरतबा लोगों ने उसको देखा, क्या तेरी नस्ल में औलाद नहीं। हम लोगों के जितने भी काम हैं हमारे, ये सारे जो है बड़े महसूस से दिखे हुए।
हमारे आगे क्या होने वाला है वो सब कुछ लिखा हुआ है, और जो लिख दिया गया वो मिटता नहीं। दो तख्तियां, एक है लौहे महफूज, एक है लौहे महवे अस्बार। तो लौहे महफूज पे जो लिखा हुआ है वो मिटेगा नहीं, लेकिन इस दल पे, ये इस दल की फजीलत है कि हम आके यहाँ से वो मिटा सकते हैं। उसकी मिसाल है कि आने के बाद वो कहता है कि औलाद दे दीजिए, फिर नस्ल में औलाद नहीं मिली। एक मरतबा होता हुआ यहाँ नहीं मिली तो कहीं नहीं मिलने वाली है। निकलने के बाद में जा रहे इमाम रस्ते में, इमाम हुसैन इस्लाम का दुश्मन है। इमाम हुसैन इस्लाम ने देखा कि गाड़ी बोलता हुआ जा रहा है, शोर हो रहा है, कहाँ हम तो बाहर आने के बाद गए थे, उनका औलाद मांगे, उनके बाद औलाद मैंने कहा तो नस्ल का बड़ा है। इमाम हुसैन इस्लाम ने आपका बात पकड़ने के बाद आए मस्जिद में, कहा लाला आपने क्या फरमाया कि इसकी नस्ल में औलाद नहीं? कहा हाँ बेटा, इसकी नस्ल में औलाद अल्लाह ने नहीं है। कहा मैंने एक, कहा बेटा औलाद नहीं है, कहा दो दी। यानी रसूल कहते जाते हैं और इमाम हुसैन सलाम औलाद देते जाते हैं। 7 औलाद देने के बाद फौरन जिब्रील नाजिल हुए, फरमाया कि ये ऐ रसूल, अल्लाह ने कहा है खामोश हो जाओ, अगर हुसैन ऐसे ही कहते रहेंगे तो अल्लाह कयामत तक के इसको औलाद देता रहेगा। एक सवाल मेरे मोहम्मद जब वो गैर को दे सकता है तो क्या हमको नहीं दे सकता? अभी मैं अभी गवाह कर रहा हूँ, कुछ 6-7 एक लेडी जब वो औलादी 7-8 साल हो गए औलादी, लेकिन 7 साल के बाद में सबने ताना मारा होता है। चौहा डॉक्टर MD है, डॉक्टर है, उसके बावजूद औलाद नहीं। लेकिन एक मरतबा जब खुशखबरी आई, आप यकीन नहीं मानेंगे, वो बच्चों को मैं देख के आया, मैंने देखा है उन बच्चों को, और रोज में उठा के देखा है, नहीं देखा जाते। वो बच्चे जो है एक साथ 2 बच्चे हुए, 2 बच्चे, दोनों लड़के हुए, और दोनों ऐसे हुए, इतने हेल्दी बच्चे हैं कि किसी को एक बच्चा भी इतना हेल्दी नहीं मिलता है जो उसको इतने वो हो। ये कहाँ से आया? कौन है ये? क्या है यानी ये इंसान की सोच से बिल्कुल अलग है। ये लौहे महफूज पे बिताना हमारी कौम, हमारी जो शिया, जो अली के चाहने वाले, ये इनका शर्फ है, ये कि जो अपने इमाम से मांगते हैं वो उनको अता करते हैं। लेकिन हमें नहीं मालूम है, एक चीज़ ये होती है कि हम इमाम से मांग रहे हैं, नहीं देते, साल हुआ, 2 साल हुआ, 3 साल, अभी जैसे उनको 7 साल हुआ, हमने देखा 10 साल के बाद औलाद होते हैं। 10 साल सवाल दे मोहम्मद 10 साल के बाद में औलाद होते हैं। गैर अपना होता नहीं, तो गैर जो है ना, गैर वो हमारे यहाँ इमाम बाड़ू में आकर मन्नतें मांगते हैं। मैं जहाँ बम्बई में इमाम बाड़े में जहाँ पे था, मैं उसी डिपार्टमेंट में था कि जहाँ पे लोग चढ़ावा ला कर देते थे। इमाम बाड़ा बना हुआ है, रोज़ा बना हुआ है, ला के देते हैं, और देते सब टोटल हिंदू काफी सब, और उसके अंदर अहले सुन्नत 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक सिर्फ चढ़ावे आते हैं। कोई चांदी का झूला लिया है, भाई किस लिए झूला? 10 साल के बाद होगा। क्या किया था? कहा मैंने 7वीं की मेहंदी, 7वीं मेहंदी उठती है, जैसे यहाँ आपने शाही मेहंदी देखी है, लेकिन मुंबई में हर जगह जो है मेहंदी इस शान से उठती है कि चाहे छोटा इमाम बड़ा हो, चाहे बड़ा इमाम बड़ा हो, चाहे जितना बड़ा इमाम बड़ा हो। एक थाल होता है, थाल के अंदर जो है तरह तरह के फ्रूट होते हैं, फल होते हैं। तो दूसरा थाल होगा, उसके अंदर तरह तरह के मेवे होते हैं। तो तीसरे के अंदर कुछ लबा वगैरह सूजी बनी हुई है। कोई चीज़ ऐसी दुनिया की नहीं है जो उन थालों में नहीं होती है। मजलिस होती है, मजलिस के बाद में थाल को घुमाया जाता है, सब लोग सुनते हैं, रजी होते हैं।
और ले जाके रख दिया जाता है। अब उसके अंदर जो भी लावलग है, बेरोजगार है, बीमार है, जो भी है, वो जाके आग बंद करके वो उठाता है, जमा कर सांस के बाद उठाने के बाद अब उसकी मन्नत जब भी पूरी हो वो लाकर उसको चढ़ाएगा। मतलब जो उसने माना है, सेब उठाया, अब वो जो मानेगा कि मैं अगर मुझे मेरा ये काम हो गया तो मैं जो हूँ ये चढ़ाऊँ। ज़्यादातर 90% लोग मैंने देखे हैं तो झूला लेके आते हैं, और कोई नकली झूला एक भी मैंने नहीं देखा। मैंने सबके कम से कम चांदी के झूले देखा, वरना सोने के भी झूला। किसी की हैसियत छोटी है, किसी की बड़ी है, किसी की इतनी बड़ी है, किसी की इतनी बड़ी है। चांदी की बात कर रहा हूँ, दूसरा कोई मेटल की बात नहीं कर रहा हूँ, पीतल और तांबे, चांदी में बनाकर जिसकी जेब के अंदर लाकर क्या हुआ, बच्चे उसने दूसरे बच्चा नहीं था, अब अल्लाह ने बना के किसको क्या हुआ, वो उसी लगे। किसी का दिल खराब था, हार्ट का प्रॉब्लम था, उसने मन्नत मानी, उसने दिल की शक्ल की चांदी बनवाई सुनारियाँ को, और वो लाके उसने पूछी ये क्या है, कहने लगा ये जो है हमारे जो है हार्ट का प्रॉब्लम था, हमने मन्नत मानी और माशाल्लाह सबसे सही। अब ये हार्ट की बीमारी का आया है तो यहाँ ज़्यादातर लोग हार्ट या शुगर के पेशेंट ज़्यादा होते हैं। एक शख्स जो हमारे बहुत करीब जानने वाला है, लगभग उसकी उम्र जो है 60 के आसपास, 3 अटैक आ चुके हैं, 3 अटैक आ चुके। डॉक्टर ने कहा है कि अगर आपकी आया तो तुम सबसे जो है विदाई ले लो, घर वालों से, बहुत पैसे वाली बात है, तुम जो हो आपकी चले जाओगे। चौथा भी अटैक आ गया, 5वां भी आ गया, 6 अटैक तो आज तक आ चुके हैं, लेकिन वो गई नहीं माशाल्लाह अल्लाह के उससे जो है। क्यों नहीं गए, वजह क्या, वजह क्या? अच्छा, वो जो है गुजराती है, गुजराती मतलब खोजा जैसे होते हैं, वो शिया अशरी होते हैं, सिर्फ वो जमात के हिसाब से चलते हैं। हम लोग जो है आज़ाद है, वो आज़ाद है, अगर डायरेक्टली बताऊँ तो वो आज़ाद नहीं है। वो उनको जो कुछ भी काम करना है, शादी ब्याह से लेकर मैया से लेकर सब जमात काम करती है, वो कुछ नहीं करते। जैसे उनके घर में किसी का इंतकाल हो गया तो जमात में फ़ोन करके बोल देंगे, वहीं का आदमी आएगा, मैयत को ले जाएगा, जो कुछ भी आपका डिमांड है वो बताइए, और वो लोग सब वो करते हैं। शादी करनी है उनसे बताइए तो वो अरेंज करते हैं, आपको ऐसा पैसा है, यानी वो कैद है, हम लोग कैद नहीं है। हम लोग जब हमारे जैसी चाहे जैसी शादी करें, मकसद ये है। उन्होंने जो है, अच्छा वो मातम वो हिसाब से करते हैं, वो लोग आज़ादारी बहुत अच्छी करते हैं, हम लोग बहुत अच्छी आज़ादारी करते हैं। उनसे जब पूछा गया तो ये बताइए ये आपको इतना अटैक करते हैं, आपको मतलब माजरा क्या, हमको भी बताइए ताकि हमको भी काम आए। तो उन्होंने जब मेरे को मुझे 3 अटैक आए तो किसी ने ये बताया कि तुम जो जोर से मातम किया, जोर से मातम किया। अजीजों, जब से बोले कहता है कि मैंने मातम करना शुरू किया है, चाहे जितने अटैक आ जाए मैं मरने वाला है। अब जब साइंस के हिसाब से देखा जाए तो जो हमारी ब्लॉकेज होती है, हमारी जो नसें होती हैं, उसका खून अटैक क्यों आता है, खून जो है वहाँ पे रुक जाता है, जम जाता है, चिंगा खाने से या जो कुछ भी खाने से जो है वो खून जो है वहाँ जम जाता है, नालियाँ छोटी हो जाती है, खून बंद हो जाता है, इंसान की वहाँ पे हो जाता है। तो जब हम सीने पे हाथ मारते हैं, सीने पे हाथ मारने के बाद हमारी नसें गर्म होती है। सीना कभी आप लोग आजमाइएगा, कभी मातम करने के बाद में सीना हमारा खोलने लगता है, गर्म हो जाता है, गर्म की वजह से लाल हो जाता है, और जब लाल होता है तो हमारा खून का दौरान तेज हो जाता है। तो जितनी चिकनाई चक्की हुई है वो सब खुद ब खुद निकल जाती है, और इंसान अटैक से और ये तो बीमारी इससे राहत हो जाती है। एक सलवात भेजे मोहम्मद वाले, यानी ये आज़ादारी का शर्त है कि हम लोग कहीं से खाली नहीं है, हमारी कोई चीज़ बेकार नहीं है। हम जितना काम करते हैं, अब कुछ कतल मुझसे निकल आते हैं,
कि ये मेहंदी कैसी है। अभी एक ने पढ़ दिया था 2 साल पहले कि देखो अभी ये गुरु जी मेरा ये जनाब कासिम की शादी कर रहे हैं, ये जनाब कासिम की शादी कर रहे हैं, जबकि शादी नहीं है। कोई कहता है कि सर क्या है ये मतलब ये रसूमात और ये अरे हर चीज़ तो ये घोड़ा क्या है, ये हर चीज़ के ऊपर जो है कुछ ना कुछ कमेंट्स देते रहते हैं। ये क्यों? क्योंकि ये जाहिल है। एक बहुत बड़े आलिम जो थे वो आयतुल्लाह सिस्तानी के वकील है। वो जब बॉम्बे में आए तो उनसे सवाल किया गया, तो वो उनके भांजे भी लगते हैं। जब उनसे सवाल किया गया कि आका ये बताइए कि ये जो रसूमात है ये जुलझना निकालना और वहाँ पे मुंबई में जो सर्दी का मातम होता है तो आप तो कभी सर्च करके देखना होना जरूर, उस पर दमाम बजाए। वो दमाम बजाने से क्या होता है, इंसान को जोश आता है और वो सर्दी का मातम होता है, बहुत ज़बरदस्त मातम होता है उस दमाम जो है। ये क्या है? बहुत सारे सवाल किए गए, उन्होंने सब सवालों का एक जवाब दिया। क्या जवाब दिया कि देखो जितनी भी चीजें आज़ादारी से रिलेटेड हैं, जो कुछ भी आज़ादारी हराम छोड़े, जैसे बेपर्दा हो क्या ना और दूसरे जो भी हराम काम है उसको छोड़ के जो भी आज़ादारी से रिलेटेड है, आज़ादारी में रसूमात है, जैसे अलम मुबारक है, जुलझना है, सर्दी का मातम है, जो कुछ भी है कभी कमेंट्स नहीं कर। ये सब जायज है और हमें कोई हक नहीं है किसी को बोलने का कि ये ऐसा क्यों है। जिसने भी क्यों चला की उस समय देना वो सफ़ेद हस्ती से भेड़ है कि हमने अपनी आंखों से देखा है कि जिसने आज़ादारी के अंदर कोई भी खुराफात करने की कोशिश की, कोई भी कमेंट्स किया, उसको दुनिया में सज़ा मिलना है। क्यों? क्योंकि ये जनाब ज़हरा की और जनाब ज़हरा रसूल की एक चहीती बेटी। ये जब गुफ्तगू करते हैं, ये जब बोलते हैं ना तो कुरान की आयत बन जाती है। बोलते पहले हैं, आयत बाद में। मौला अली ने रुकू पहले किया, आयत बाद में। इन्होंने खैरात पहले की, आयत बाद में। यानी जो अमल है इनके, बल्कि ये कहना चाहिए कि इनके उठना और बैठने को नमाज कहते हैं। कि जैसे कोई नमाज पढ़ सकता है, तो इन्होंने पढ़ी है जब नमाज, वरना इनके पहले नमाज है। ये पहले पैदा हुए हैं, बाद में किबला काबा बना है। एक सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। समझ में आई? मैंने बहुत बड़ी बात है। पहले ये पैदा हुए, पहले खुदों को पाक किया, बाद में रसूल से कहा गया है कि काबे की तरफ उतर के नमाज पढ़ो। पहले नमाज का हुक्म था, पहले मौला पैदा के बाद यानी कोई भी आज़ादारी से रिलेटेड हो उसको ऊपर कमेंट्स करना हमारे लिए जायज़ नहीं है, क्योंकि ये सीधा ताल्लुक जनाब मौला अली से नहीं है, इमाम हुसैन से नहीं है, रसूल खुदा से नहीं है, इमाम हसन से नहीं है, किसी से नहीं है। ये जनाब कोई मजलिस बड़ी नहीं होती है और कोई मजलिस छोटी नहीं होती। ये भी ज़हन में कि वहाँ बड़ा दाखिल पढ़ रहा है तो वो मजलिस जिक्र हुई। पढ़ने वाले अलग अलग, कोई मकामी है, कोई गैर नहीं, कोई मजलिस छोटी नहीं होती। एक शख्स तो बहुत मशहूर है, बहुत ज़ाकिर, बहुत कुछ बच्चे आए, उनके पास आने के बाद कहने लगे सारा हमारा मजलिस पढ़ दीजिए। तो ठीक है पढ़ दे। तो क्लास के बजे आने वो आने के बाद उन्होंने बस ऐसे ही जो भी है 15-20 मिनट आ रहे था, मजलिस पढ़ी सुबह और पढ़ने के बाद निकल गए। तो एक बच्चा आगे बढ़ा, उसने कहा मौलाना पैसे वैसे तो उस वक्त वो नहीं थे, तो उन्होंने कहा कि
एक चाय बनाई है हम लोगों ने सुबह सुबह में, तो जब कहीं कभी आप सुबह में बने जाए तो चाय जरूर मिलती है। चाय बनाई, ले तो लिया, काफी मतलब बहुत बड़े जाकिर थे, बहुत बड़े, तो चाय दिया, बच्चा उधर गया और उन्होंने चाय प्यारी थी, बर्फ लगे हुए थे, अब वो चले गए, वो बच्चे समझ गए ऐसी भी हो गया, वो वापस चले गया। रात को जब वो खराब नहीं देखा, ये वाकया ये कोई मंजरा तो ये कोई बनावटी या बनाया हुआ नहीं है, ये वाकया हुआ है जो बयान हो रहा है। रात में खाब हो गया, ताकि इतना बड़ा अपने आप को जाति करता है। कौन आया था आपने मालूम है? जनाफिल तो इतना बड़ा जाति है, तूने मजलिस तो पढ़ी, लेकिन जो चाय थी ना, चाय जो बच्चे ने तुझे चाय की कहा, तूने फेंक दी, घबरा गया कि मेरे कहा मैंने फेंक दी, कहा वो चाय जो है मैंने अपने हाथों से बनाई, समझ में आई? वो चाय मैंने बनाई थी, तूने फेंक दिया। अजीजों घबरा के उठ गया, वो कान पकड़ लिया कि ये मैंने क्या कर। अब हम अपने आप को देखते हैं, आइए अपने महल में, हम जिस गिलास में मजलिस में शरबत पीते हैं, शरबत छोड़ के पानी पीते हैं, तो किसी मोहनी का झूठा नहीं पीते, खुद अपने व्यवहार में छाते हैं, इसका झूठा गिलास है, दूसरे गिलास हम ये गिलास नहीं, ना का झूठा नया, ये क्या ये झूठा नहीं है। कुरान की आयत है इन्नमल मोमिनूना इख्वा, यानी हर मोमिन अपना अपने मोमिन का भाई है। कुरान कहता है कि मोमिन मोमिन का भाई है। भाई का मतलब क्या होता है? सगा भाई है। तो कहते हैं कि आदम की औलाद से कोई काफिर तो है नहीं, मुनाफिक तो है, लेकिन आज घर में जो नाइतफाकियाँ और जो कुछ भी है, झगड़े पता, थोड़ी थोड़ी सी बात पे मांगे करना और चीख पुकार बचाना, ये सब क्या है? ये इसी बात का नतीजा है कि हम एक दूसरे के गिलास, एक दूसरे की प्लेट में खाना नहीं खाते कि झूठा है। किसने दूध पी के दिया कि हम नहीं पिएंगे, किसने ऐसा पानी पी के दिया हम नहीं करेंगे, किसने खान दिया इसलिए हम ये नहीं पिएंगे। ये सारी छोटी छोटी चीज़ें, ये फर्श अज़ा का सदका है। यहाँ पर आकर हर कोई एक गिलास में शरबत पीता है, एक गिलास में पानी पीता है। ये क्या? ये सिखाया जा रहा है कि तुमने 11 महीने अपने घर में ये सब किया है, एक महीना एक दूसरे का जूता पीकर देखो उससे क्या तासीर हो। हम लोग नहीं जानते हैं कि आजकल होता है, पहले ऐसा नहीं होता था। पहले दूल्हे रखे जाते थे सभी लोग, उसी में लोग पानी पीते थे। आज जब से ये डिस्पोजल निकला है, जब से लोगों में ज़्यादा दुश्मनियाँ बढ़ गई, जब से ये डिस्पोजल प्लेटें आ गई, गिलास आ गए, ये सब क्या है? ये हमको दूर करने का है। ये सब आपस में ये न इत्तेफाक है, इसीलिए क्योंकि हम एक दूसरे का झूठा नहीं खाते, झूठा नहीं पीते। बचपन में शायद आप लोग भूल गए होंगे कि माएँ जो होती थी ना, माएँ हमारी, दूसरों की बात नहीं करो, हमारी जो माँ थी ना, वो क्या करती थी बचपन में? जैसे नबी आती थी, हम लोग नबी के सिवा कभी पान नहीं खाते। कल यहाँ पे चरण है, लेकिन हमारे यहाँ मुंबई में जो है नबी में जो है हम लोग खुशी में पान जरूर खाते हैं, पान बनता है। मुंह में पान चबाती थी, चबाने के बाद चबा के हमारे मुंह में पाना। जैसे कबूतर को देखा होगा, कबूतर जो है दाना जो है वो कैसे अपने बच्चे को डालता है, मुर्गी कोई भी जानवर हो, चोंच वाले, वो सब अपने बच्चों को कैसे बाहर चिड़िया कैसे बनाती, वैसे हमारी वालिदा जो है हमको चबा के खिलाती। उस वक्त बड़े आसानी से खा लेते थे। अब जैसे ही थोड़े से बड़े हुए, फिर हमारे जो है सारी चीजें शुरू हो गई। ये झूठा, ये सच्चा, ये झूठा, ये सच्चा, ये हमने खाएंगे। और बचपन में क्यों नहीं कहा तुमने? और अगर इससे कोई बीमारी होती है तो अब तक क्यों नहीं हुई? अब तक क्यों नहीं हुई? इसीलिए
इस पर शिनाख्त बनाने के बाद हमको दर्स मिलता है कि हमें ना इत्तेफाकियाँ दूर, यानी हम जब आके दुनिया फर्श अज़ा पर बैठते हैं ना, तो हमारा फर्श इतना, हमारा इतना ज़मीन इतना आला हो जाता है, हम लोग इतने बुलंद हो जाते हैं कि हम लोग जो है इतने बुलंद हो गए कि हम जब बैठते हैं तो कभी कोई रसूल खुदा हमारे बाजू में बैठे हैं, कोई किसी के बाजू देना को मुस्ता बैठे हैं, किसी के बाजू देना के ऊपर, यानी पूरे 1,24,000 किया गया बना। किसका मर्तबा बड़ा है? हमारा मर्तबा बड़ा है, क्योंकि हम उनके दरमियान में बैठे हुए हैं। अजीज़ान मतलब हमारा बहुत ऊंचा शख्स, एक शख्स है वो भी ऐसे ही है पैसे वाला, उसने देखा कि एक जुलूस निकला है और सब पब्लिक जा रही है, एक गुड़िया है और वो जो एक टेबल के ऊपर एक कुछ गिलास और उसके अंदर शक्कर का पानी बांट रही है, शक्कर का पानी बांट रही है। अब इसने जो है देखा, देखने के बाद उसको मक्खियाँ भी रह रही हैं, उसको बहुत बड़ी घिन रहेगी उसको कि ये क्या है। अब वो बेचारे कुछ लोग जो है वो पीते भी हैं, कुछ बच्चे पी रहे हैं और बाकी जो उसमें बैठती है अपना गुड़िया जो है वो अपने सबील लगा, उसको देखिए सबील है, पूजे अपने उसमें शक्कर का पानी है और कोई फ्लेवर, कोई शरबत नहीं, कुछ नहीं, मक्खियाँ बैठ रही हैं, वो पत्तियाँ बना रही हैं। उसने जब देखा, देखने के बाद तो वो आगे बढ़ा। रात में जब वो सोया तो उसने ख्वाब में देखा कि एक दरबार लगा हुआ इमाम साहब, और उस जुलूस के जितने तबरुकात थे वो सब लाए जा रहे, फुलाने ये बांटा है, फुलाने ये बांटा है। इमाम साहब की केवता उसको दूसरा आया फिर केवता। जब सब आने लगे तो काफ़ी देर हो गई, ये ख्वाब देख रहा है। जब काफ़ी देर हो गई तो इमाम साहब ने कहा वो गुड़िया के पूजे कहाँ है, गुड़िया के पूजे कहाँ है, तो कल उसने गया जाके वो पूजे का ये शरबत लिया, शरबत वो अगर उसकी आँख खुली, आँख खुलने के बाद में अब ये हड़बड़ाया, क्योंकि रसूल खुदा की हदीस है कि जिस ख्वाब में मासूम आ जाए वो ख्वाब झूठा नहीं है, क्योंकि रसूल की हदीस है, क्योंकि शैतान कभी हमारी शक्ल ही नहीं ले सकता। तो झूठा ख्वाब क्या होता है? झूठा ख्वाब यही होता है कि शक्ल किसी की भी आ जाती है, तो मासूम की शक्ल कभी शैतान नहीं लेता। वो फौरन उठा, उठने के बाद भागता हुआ उस गुड़िया की दरवाजा और दरवाज़ा खटखटाया, तो गुड़िया घबरा दी, कौन आ गया इसमें, दरवाज़ा खोला गया, कौन? अरे मैं कहता हूँ हमें जानती नहीं है। तो हाँ लेकिन क्या बात है, क्यों? कहा तुमने सबील लगाई थी, हाँ सबील लगाई। कहा वो जो शरबत था वो तो तुमने बनाया था वो मुझे पीना था, खत्म हो गया सर, कुछ नहीं है। कहने लगे मुझे चाहिए है, कहने लगे खत्म हो गया। कहने लगा वो उसके बर्तन तो होंगे ना, पूजे तुम्हारे पास? हाँ पूजे है, पर धो दिए, कहा नहीं धोए नहीं, वही पड़े हैं, अब सुबह होगी तो उसको वो बर्तन होते, वो बर्तन लेकर वो पानी डालता जाता था, पीता जाता था, डालता जाता था, कहने उसको खनाल खनाल के और धो धो के। क्या हमको क्या मालूम पड़ा इस वाक़या काहे की, किसको दिखाने के लिए, किसके लिए? ये आपको दिखाने के लिए कि जब भी मजलिसों में जाओ, जब भी कहीं भी जाओ, फर्श आज़ा बिछी है, वहाँ पे कभी भेदभाव नहीं, चाहे वो पानी का गिलास हो, चाहे वो शरबत का गिलास हो, चाहे वो खाने की प्लेट हो, किसी भी चीज़ की हो, कभी भी भेदभाव, क्योंकि ये सब मेरे लोग। कभी हम ये सोचते हैं कि हम इससे ज़्यादा जानते हैं, ये खुला ये करें, लेकिन ऐसा अल्लाह ने कहा है जिसने भी विलायत अली इब्न अबी तालिब को इकरार किया है वो जन्नत उसके वाजिब है। मन माता आले मोहम्मद मन माता हुब्बे अली माता शहीदा,
جو بھی علی کی محبت میں مرتا ہے وہ شہید مرتا ہے. ہم کبھی نماز جماعت پڑھی ہوگی، نماز میت جس نے بھی پڑھی ہے پڑھنا چاہیے. نماز میت میں جو پیش امام جب کھڑا ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ پڑھنے والے سے جملہ کہ پڑھنے والے میں نے اس کو جب بھی دیکھا خیر پر دیکھا، میں نے اس کو جب بھی دیکھا خیر پر دیکھا. جتنے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں ان کو معلوم تھا کہ یہ آدمی کیسا ہے. جتنے بھی بھائی ہمارے محلے کا ہے کبھی آدمی کوئی بھی محلے کا ہے تو سارے محلے والے جانتے ہی ہیں جس طرح سے ہر آدمی دماغ میں یہ سوچے گا. اگر وہ اردو میں ترجمہ کیا جائے تو ہر آدمی یہ کہے گا کہ اتنا برا انسان تھا، گالی کے سوا بات نہیں کرتا تھا. مولانا کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس کو ہمیشہ خیر پہ دیکھا. مولانا بھی جھوٹے ہیں بھائی، مولانا بھی تو پڑوس میں رہتے ہیں، ان کو تو ساری گالیوں کی آواز میں وہ سنتے ہیں. ساری برائیاں ان کے گھر میں ہیں. مولوی کہہ رہا ہے پالنے والے میں نے جب بھی دیکھا گواہی، خود بھی گواہی دے رہا، پیچھے جتنے کھڑے ہیں سب گواہی دے رہے کہ پالنے والے ہم نے اس کو خیر پر دیکھا، اس کو ہم نے اچھا دیکھا، اس نے کبھی برائی نہیں ہے، خیر ہی خیر ہے اس کے. امام جب پوچھا گیا ان کی کیا خیر ہے، یہ تو اتنا گناہگار تھا، تو امام نے فرمایا کہ یہ خیر سے مراد اس کا گناہ نہیں ہے، خیر سے مراد ولایت علی ابن ابی طالب. ایک سلوات بھیجے محمد. ولایت شرط ہے. آٹھویں امام کے زمانے میں آٹھویں امام کو جب ظالم جابر بادشاہ نے جب خط پیچھے بلایا تو مولا ہماری پہ آ گئے. جیسے ہی جتنے بھی تاریخ لکھنے والے جتنے سے 50 ہزاروں لوگ جمع ہو گئے کہ امام آ گئے، شیعوں کے امام آ گئے. امام سے کاغذ قلم لیے بیٹھے ہیں، مولا فرمائیے کوئی حدیث رسول کی بتائیے. امام نے پہلا جملہ کہا کلمۃ لا الہ الا اللہ و حسنی. کلمہ لا الہ الا اللہ ایک قلعہ ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ ایک قلعہ ہے. فمن دخل من عذابی، جو اس میں داخل ہو گیا اس نے عذاب سے نجات پائے گا. یہ کہہ کے امام نے پردہ گرا دیا. محل کسے کہتے ہیں؟ اونٹ کے اوپر جو بنایا جاتا ہے. امام نے پردہ گرا. اب سب پریشان تھا. مولا اس کا جواب دے دیا قلعے میں جائے کیسے؟ راستہ تو بتا دیا کہ لا الہ الا اللہ قلعہ ہے، جو اس میں جائے گا وہ عذاب سے بچ جائے گا. اب جائے کیسے یہ تو بتائیے. تو امام نے ایک مرتبہ پردہ نہیں اٹھایا، فرمایا شرطہا و شروطہا. اس میں جانے کے لیے کئی شرطیں ہیں، جس میں سے ایک شرط یہ ہے کہ میرے دادا علی کی ولایت رکھتا ہو. ایک سلوات بھیجے محمد والے یعنی انسان کو ہر جگہ علی ولی اللہ، علی یعنی مولا علی کا ذکر ہمیشہ ہونا چاہیے. اور پہلے بھی اس کے مجلس میں کہہ چکا ہوں کہ ہر وقت انسان کے لبوں پہ یا علی مدد ہونا چاہیے. ٹھوکر لگی یا علی مدد. بچہ ٹھوکر کھاتا ہے تو بچہ نہیں کہتا ہے، ماں اگر چل رہی ہے تو ماں کہتی ہے یا علی مدد. بھائی جن کے گھرانوں میں علی کا ذکر ہوتا ہے تو ابھی تو یہ بہت کم ہو گیا ہے، لیکن ہمارے بچپن کی بات بتا رہا ہوں کہ بچہ نہیں کہتا ہے، بچہ ٹھوکر کھاتا ہے ماں کے منہ سے نکلتا ہے یا علی مدد، اور بچہ سمجھ جاتا ہے. یہ کیا چیز ہے؟ یعنی پکارا علی کو اور علی حاضر کو. یہ علی یہی تو یہ جو افضلیتوں میں سے ایک فضیلت یہی بھی تو ہے کہ ان کا چاہنے والا پکارتا ہے یا علی مدد اور وہ مدد کرنے کو بچتا ہے. ایک آخری واقعہ ہو گیا. دو شخص ہیں، ایک مومن ہے ایک منافق. دونوں حج کے لیے جا رہے ہیں. جاتے جاتے راستے میں دونوں سے بحث ہو گئی. ایک
कहता है कि मैं अगर खैबर के मैदान में होता, मुनाफिक कह रहा है, तो अली को कत्ल करता। खैबर मोमिन कहता है अगर मैं खैबर में होता तो तुझे कत्ल करता। बस ये दोनों में बातें होती रही। एक जगह ही दोनों जो है, दोनों में अपनी सवारी होती है, दोनों सोने के लिए तो उतर गए, दोनों बैठ। अब बहस चल रही है, चलते चलते दोनों में हाथापाई होने लगी। हाथापाई होते होते इसने मुनाफिक ने तलवार निकाली और वो मोमिन के सर पे तलवार मारी, वो बेहोश हो गया। सर से खून निकला, वो बेहोश हो गया, मरा नहीं, बेहोश हो गया। और ये जो था छोड़ के भाग गया, ये समझा कि मर गया और भाग गया। थोड़ी देर के बाद मोमिन कहता है कि मैंने उठ के देखा तो मुझे होश आया। जब होश आया तो मैंने देखा कि एक नूरानी चेहरा है जो उस शख्स, उस मुनाफिक का बालों से सर पकड़कर मेरे सामने ला कर सर पकड़ने लगे, तेरी दुआ कबूल हो गई। अब ये समझ लेना, लोगों से ये कहना कि तूने खैबर में ही सर इसका सर निकाला है, इसका सर काटा है, क्योंकि जो मेरी तरफदारी करता है मैं हमेशा उसका साथ देता हूँ। एक सलवात भेजे मोहम्मद वाले। नारे हैदरी, नारे तलवार। हम मौला अली के फज़ाइल बयान कर ही नहीं सकते। समंदर में मक्खी के सर के बराबर कीमत अली के फज़ाइल, इंसान के दिल में आती है। सुबह उठे तो जागे लगा, दोपहर हुई तो जागे, बिस्तर में गए तो जागे। दुनिया अली के बगैर है ही नहीं, कुछ नहीं है, खाली है। आप आजमा के लीजिए, कभी गमगीन हो, कभी कोई मुसीबत आए, कुछ भी आए, आप सिर्फ एक मतलब दिल से या अली मदद करके खुद बखुद आपके शहर में कोई ना कोई रास्ता निकलता दिखाई देगा, कुछ न कुछ रास्ता निकलेगा। एक छोटी सी मिसाल कि आप अगर जा रहे रास्ते से और आपके पास में लाइसेंस नहीं है या गाड़ी में कोई प्रॉब्लम है और सामने आजू वाला खड़ा है, आप सिर्फ या अली मदद करके, कुछ नहीं आता आपको। वरना बहुत सारी आयतें हैं, कुरान की आयतें, ये आयत है ये, तो वो आयत अगर इंसान किसी के सामने पड़े तो अंधा हो जाता है। नहीं आ रही, हमेशा मैं वो आयत पढ़ता है तो सलवार भेजे मोहम्मद। कौन सी आयत है वो? वजअलना मिन बैन अयदीहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दन फअग़शयनाहुम फहुम ला युबसिरून। ये किस मिसाल में मैंने आयत बताई थी बच्चों को कि स्कूल में कभी इस आयत को इस्तेमाल नहीं करना कि होमवर्क नहीं किया है, टीचर के सामने पढ़ो, टीचर अंधी हो गई। मैं अपना आजमाया बता रहा हूँ कि मैं भी यही हरकत करता हूँ कि कभी होमवर्क नहीं किया और जो है मालूम है कि आज कितने पिटाई होने वाली है, ये आयत पढ़। अब ये सब बचपन में हमको ये सब चीज़ें बताई गई हैं कि ये सब, लेकिन ये गलत, उसका मिसयूज़ ना किया जाए। एक आध बार ठीक है, लेकिन जो है उसका गलत इस्तेमाल है कि आदमी ये आयत जो है यासीन की आयत जो है वजअलना मिन बैन अयदीहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दन फअग़शयनाहुम फहुम ला युबसिरून। मैंने न जाने कई लोगों को लिख के दी है और वो लोगों ने फ़ायदा उठाया और फ़ोन करके बोलते हैं कि भाई काज़िम भाई ये जो है ये आयत से हमको फ़ायदा हुआ है, हमने ये पढ़ी है और वो सामने वाला अंधा हो गया। यहाँ तक कि हम अगर बम्बई में लोकल ट्रेन में भी सफ़र करते हैं और कभी वाइट टिकट नहीं है तो हम ये आयत पढ़ते हैं तो वो किसी उतर जाता है और उनको बिल्कुल नज़रअंदाज कर देता है। ये आयत कब नाजिल हुई? एक रसूल खुदा जब गार में गए थे, काफिर उनको ढूंढ रहे थे, तब ये आयत नाजिल हुई। ये आयत रसूल खुदा ने पढ़ी और वो काफिर सारे अंधे हो गए। तो जब काफिर अंधे हो सकते हैं तो हम भी रसूल के चाहने वाले हैं, तो हमको भी मतलब कोई अगर मुनाफिक अगर आए या काफिर आए तो हम उनको भी अंधा कर सकते हैं। ये अल्लाह ने कुरान की आयत में ये शर्त रखा है, ये शर्त है हमारा, और ये फायदा सिर्फ ये मोमिन को देती है, मुनाफिक को नहीं देती है। यार लाख पढ़ के मर जाए वो, कोई फायदा नहीं है। ये मोमिन ही पढ़ेगा, क्योंकि कुरान मोमिन के लिए नाजिल हुआ है, मुत्तकीन के लिए। हुदल लिल मुत्तकीन, ये मुत्तकियों को हिदायत करता है, मुनाफिकों को हिदायत करता है।
ایک سلوات بھیجے محمد وآل محمد. ہاتھ شریف صاحب ہو. آج حسن کے یتیم قاسم ابن حسن کا فکر کرنا. کون قاسم؟ فروا کا لال قاسم. عزیزو، ایک وقت آیا کہ جناب قاسم اپنے زانوں میں سر دیے بیٹھے ہوئے ہیں، سوچ رہے ہیں کہ ماموں جان کیسے اجازت دیں. عزیزو، ایک مرتبہ جناب قاسم کو یاد آیا کہ جب امام حسن علیہ السلام دنیا سے جا رہے تھے تو جناب قاسم کو ایک خط دیا تھا اور کہا جب تم پر کوئی مصیبت پڑے تو یہ تعویذ کھول کے پڑھ لینا. عزیزو، جناب قاسم نے وہ تعویذ لیا، اپنے بازو میں بندھا ہوا تھا. وہ تعویذ لے کر مولا حسین کے پاس پہنچے. جیسے ہی مولا حسین نے وہ تعویذ اپنے بھائی کی نشانی دیکھی، اتنا زہر و قطع رونے لگے. عزیزو اجمل اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. جناب قاسم کو جنگ کی اجازت دی. ام فروا نے جناب قاسم کو تیار کیا. جناب قاسم مقتل میں پہنچے. عزیزو، جناب قاسم کو جنگ کے حلبے جناب مولا عباس نے سکھائے تھے. مولا عباس کے شاگرد تھے. جناب قاسم نے ایسی جنگ کی کہ فوج بھاگنے لگی. عزیزو، جناب قاسم ایک مرتبہ زمین پر تشریف لائے. آنے کے بعد آواز دیے، ماموں سلام، اے چچا سلام. عزیزو، حسین خیمے سے نکلے، ارے مقتل کی طرف چلے. حسین کو مقتل میں آتے فوجیں اشکیا میں ایک اور مچ گیا. یہاں کی فوجیں وہاں، ادھر کی فوجیں ادھر. جناب قاسم پہ گھوڑوں کے ٹاپے. عزیز، جناب قاسم ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. جناب امام حسین جب کو پہنچے جناب قاسم کے پاس، جناب قاسم کے ٹکڑے ملے. ابا کا دامن لیا، قاسم کے ٹکڑے جمع کیے، ٹکڑے لے کر خیموں کی طرف چلے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ لعنت اللہ علی الظالمین. پانے والے ہماری اس مقدس عبادت کو قبول فرما. پانے والے جہاں بھی یعنی اللہ تعالیٰ کے حفاظت فرما.